Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course. And dear students, in our today's video we will discuss about the class 6 regarding the subject science, and for this subject, that is the science, today we will discuss important 15 MCQ or objective questions, that is most important 15 expected objective questions or MCQ questions related with their science subject, especially for class 6 for the session 2022. And this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board. So let us start with our top important 15 questions or MCQ questions related with your class 6, and the subject is science. And this syllabus is common for all the boards, either CBSE board or the state board for the session 2022, and the syllabus is related with the term 2. So here बेटा आज की जो हमारी वीडियो है that is related with our class 6 और class 6 के हमने सब्जेक्ट साइंस रिलेटेड important 15 expected MCQ questions और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है. So let us start with our first question related with your science subject, and your first question is, which one is a process in which water changes into vapors in the atmosphere? Which one is a process in which water changes into vapors into the atmosphere? So you will name that process by which the water changes into the vapors in the atmosphere. Name that process. Your options are: option A is evaporation, option B is transpiration, option C is precipitation, and option C is condensation. So which is the right option by which the water changes into water vapors into the atmosphere? Name that process. तो जिस प्रोसेस के द्वारा बेटे हमारा जो वाटर है that is converted into the vapors in the atmosphere, that process is known as, उस प्रोसेस का जो नाम है बेटा that is evaporation. Evaporation. Evaporation is the process by which the water changes into the vapors in the atmosphere. So that process is known as evaporation. Not condensation, not transpiration, and even not precipitation. All these are the wrong options, because by these processes water does not changes into the vapors in the atmosphere, but only the evaporation is the process by which the water changes into the vapors in the atmosphere. So here this is the right answer for the question number 1. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is potable waters. Potable waters. What do you mean by the term potable? Potable water is, your options are either potable water is ocean water, second one is groundwater at selected places, third one is river water, and the fourth one is pond water. So beta, potable water. Potable water is that water in which it is selected places, especially ये कहाँ पर select किया जाता है potable water? जो potable water is at the ground water. जो potable water है it is the ground water, और ये कहाँ पर select किया जाता है? At the selected places पर. So that water is known as potable water. So here the answer of the question number 2 is, that is potable water. Potable water is the ground water at selected places. ये कुछ selected places पर ही collect किया जाता है, and especially कौन सा water है? That is the ground water, not the ocean water, not the river water, and even not the pond water. इस तरह से ये कोई भी वाटर नहीं है. पोटेबल वाटर जो है वो एक तरह का एक ग्राउंड वाटर है जो कि हमें कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पर ही मिलता है. सो पोटेबल वाटर इज ग्राउंड वाटर एट सिलेक्टेड प्लेसेस. सो here बेटा दिस इज द पोटेबल वाटर. आपको ध्यान रखना है कि पोटेबल वाटर होता क्या है. पोटेबल वाटर इज द ग्राउंड वाटर.
ठीक है, ग्राउंड वाटर है, और ये हमें कहां पर मिलता है? एट सिलेक्टेड प्लेसेस। जबकि पोटेबल वाटर आपका ओशन वाटर नहीं है, रिवर वाटर नहीं है, और पॉन्ड वाटर भी नहीं है। ऑल दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस, बट ग्राउंड वाटर एट द सिलेक्टेड प्लेसेस इज द पोटेबल वाटर। सो हियर दिस इज द राइट आंसर। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 is which is not a part of water cycle। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो पार्ट नहीं है वाटर साइकिल का। क्लाउड फॉर्मेशन, रेन वाटर, ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स एंड सन। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस which is not a part of water cycle? क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, sun, all these are the important part of the water cycle। ठीक है, जबकि आपका जो पार्ट नहीं है वाटर साइकिल का बेटे, दैट इज ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स। ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, इज नॉट ए पार्ट ऑफ water cycle. So remember one thing beta, cloud formation, rain, sun, all these play an important role in the water cycle, but drinking by animals is not a part of the water cycle. So here this is the right answer. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is which is the result of condensation of water vapors। इनमें से क्या है which is the result of condensation? आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है कंडेंसेशन का, स्पेशली कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो वाटर वेपर्स है वो किस तरह का रिजल्ट जो है वो लीड करते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन द वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स बनेंगे वो किस तरह की प्रोसेस को लीड करते हैं। ऑप्शंस आर रेन, सेकेंड वन इज स्नोफॉल, थर्ड वन इज हेल, एंड द फोर्थ वन इज टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इनमें से आपको ये बताना है कि विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा जो पार्ट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स के दौरान जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है उसमें से कौन सा रिजल्ट होता है वो लीड करता है, या तो रेन, या फिर स्नोफॉल, हेल, या फिर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इनमें जो बेटी हमारी जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं, जो वाटर वेपर है वो किस तरह का रिजल्ट देती है, दैट रिजल्ट्स एज अ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके बनते हैं जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। उस कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जो वाटर वेपर्स होते हैं दे चेंज इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में सच एज लाइक दीज टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, इस तरह के टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सो after the process of the condensation the water vapors changes into tiny water droplet. So these are the tiny water droplets. So here this is the right answer. तो ये आपको बेटा ध्यान देने योग्य बात है कि जब हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उस कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान कभी आपने घर में पानी को हीट करके देखो, आप वाटर को हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए आप रख दें, तो ठंडा होने के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जो उसमें जो वाटर वेपर्स थे वो छोटे छोटे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। सो हियर दिस इज द राइट आंसर। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड your question number 5 is which one is the purest form of water? इनमें से कौन है जो purest form of water है? Out of these options, there are 4 options related with this question, and you will choose which is the purest form of the water. क्योंकि जो पानी है बेटे उसकी कोई ना कोई purest form जो होगी वो जरूर होगी। So आपको वही चूज करनी है कि जो purest form है water की वो कौन सी है। Either river water is the purest form, ground water is the purest form, rain water is the purest form of water, या फिर ocean water is the purest form of water. So out of these options, which is the purest form of water? या तो हमारा rain water जो purest water है,
रिवर वाटर प्योरेस्ट वाटर है, ग्राउंड वाटर प्योरेस्ट वाटर है, या फिर ओशन वाटर प्योरेस्ट वाटर है। तो बेटे जो हमारा रिवर वाटर है, इट इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। ग्राउंड वाटर अगेन इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओशन वाटर अगेन इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट द रेन वाटर is the purest form of water. Purest form of water. So here beta, this is the right answer for the question number 5. That is, rain water is the purest form of water. यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देनी होगी बात है बेटे कि जो हमारा purest form है water का, that is the rain water. Now shift to the question number 6, and your question number 6 is circulation of water between the ocean and land is known as. Circulation of water between the ocean and land. जो circulation है water का, water के बीच में जो circulation हो रहा है, और circulation किसके बीच में हो रहा है? Between the ocean and the land. Ocean और land के बीच में जो हमारा circulation हो रहा है water का, that process is known as either water cycle, the rain cycle, water management, and water harvesting. So which is the correct answer for the question number 6? जिसमें आपको जस्टिफाई करना है बेटे कि जब पानी के बीच में सर्कुलेशन होता है, पानी है, पानी के बीच में क्या होगा? सर्कुलेशन होगा, सर्कल करता है पानी। जब पानी के बीच में, जैसे हमारी बॉडी के बीच में ब्लड जो होता है वो क्या करता है? सर्कुलेशन करता है, फ्लो करता है ब्लड। तो वैसे ही जो वाटर है वो भी क्या करता है? सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन होता है। और वो सर्कुलेशन किसके बीच में? ओशन और लैंड के बीच में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? या तो उस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहेंगे, रेन साइकिल कहेंगे, वाटर मैनेजमेंट कहेंगे, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे। तो जो बेटे हमारा सर्कुलेशन होता है वाटर का बिटवीन द ओशन एंड द लैंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। और इस वाटर साइकिल के बीच में बेटे क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। वाटर साइकिल में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ वाटर, एंड दैट सर्कुलेशन ऑफ वाटर दैट इज बिटवीन द लैंड एंड द ओशियन, लैंड एंड ओशियन के बीच में बेटे। सो हियर दिस इज द राइट आंसर, वाटर साइकिल। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Now shift to the question number 7, and your question number 7 is the percentage of water in potato is. Percentage of water, क्योंकि पानी बेटे हर एक किसी में है, ठीक है? ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी वाटर है, हर एक चीज में क्या है? पानी है। सो द परसेंटेज ऑफ वाटर इन पोटैटो इज, कितना परसेंटेज है वाटर का पोटैटो में? 80%, 88%, 75%, 90%, या फिर 95%? हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इन पोटैटो? कितना परसेंटेज ऑफ वाटर पोटैटो में? या तो 88% है, 75% है, 90% है, या फिर 95% है। सो चूज द करेक्ट आंसर बेटे। इसमें से हमें एक करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है, एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें जो बेटे हमारा सही आंसर होगा, जो परसेंटेज है हमारी वाटर की पोटैटो के बीच में, दैट इज 75%. 75% of water is present in the potato. So this is the right answer. Out of these options, 88%, 90%, 95%, all these are the wrong options. But the percentage of water in potato is 75%. So here this is the right answer. Now shift to the question number 8, and your question number 8 is, out of these which is not a source of surface water? Surface water, that water which is present on the surface. So out of these options, which is not a source of what? Surface water. इनमें से कौन है जो surface water का स्रोत नहीं है, source नहीं है? रेन वाटर है, रिवर एंड लेक वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, सी वाटर है। इन चारों में से आपको ये जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारा सोर्स नहीं है सरफेस वाटर का, क्योंकि जो सरफेस वाटर है उस सरफेस वाटर के लिए कोई ना कोई सोर्स जरूर है। तो उस सरफेस वाटर का सोर्स क्या है? रेन वाटर है,
रिवर एंड लेक वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, या फिर सी वाटर है। तो इसमें से आपको जस्टिफाई करना है कि विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर का हमारा कोई सोर्स नहीं। तो बेटे जो रेन वाटर है इट इज द सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, रिवर एंड लेक वाटर इट इज अगेन द सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, सी वाटर अगेन इज द सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर। तो ये सारे के सारे जो है वो सोर्सेज है सरफेस ऑफ वाटर के। जैसे आपका रेन वाटर आ गया, रिवर एंड लेक वाटर आ गया, या फिर सी वाटर आ गया, तो ये सारे के सारे क्या है बेटे सोर्सेज ऑफ द सरफेस वाटर। पर इनमें से अगर जो सोर्स नहीं है हमारा सरफेस वाटर का, दैट इज द स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर इज नॉट ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर का जो सोर्स नहीं है बेटे दैट इज स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर इज नॉट ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर क्वेश्चन नंबर 9 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जिस पॉइंट पर, जिस बॉइलिंग पॉइंट पर हमारा वाटर जो है वो बॉइल्ड कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द पॉइंट एट विच द वाटर इज बॉइल्ड, जिस बॉइलिंग पॉइंट पर आपका वाटर जो होता है वो बॉइल्ड कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो हियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, या फिर 102 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या रहता है, किस पॉइंट पर हमारा वाटर जो है वो बॉइल्ड करता है, एंड दैट point is known as boiling point of the water. So beta here 100 degree Celsius, 100 degree Celsius is the boiling point of water, is the boiling point of water at which the water is boiled, is the boiling point of water at which the water is boiled. is पॉइंट पर हमारा जो वाटर है वो क्या करता है, बॉइल्ड करता है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइट आंसर, नॉट 99 डिग्री सेल्सियस, नॉट 101 डिग्री सेल्सियस, एंड इवन नॉट 102 डिग्री सेल्सियस, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 इज प्लांट्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि प्लांट जो होते हैं दे ऑलवेज रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रैप द sunlight, and in the presence of sunlight they can prepare their own food themselves, especially in the form of carbon dioxide and water, and they have the special capability to attract the sun rays because they have special type of pigment, and that pigment is known as chlorophyll. Chlorophyll is present in the plants, that's why plants always appear green in color. So plants releases large amount of water vapors into the atmosphere. अब जो पौधे हैं बेटे वो लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, पर वो किसकी प्रोसेस की हेल्प से वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जो वो रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट मींस वहां पर कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो उस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आइदर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड द ट्रांसपायरेशन। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो कौन सी प्रोसेस है बेटे जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर? क्योंकि अभी मैंने कहा कि प्लांट्स के पास स्पेशल टाइप की कैपेबिलिटी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना जो है वो स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and the plants they release a large amount of water into the atmosphere, and that process is known as transpiration process. Transpiration, that process is known as transpiration.
इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको पता ही बेटे क्या होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें हमारे वाटर जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है वेपर्स में। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। बट इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन plants can release large amount of water into the atmosphere and that process is known as transpiration. Only with the help of this process of transpiration plants have the capability to release a large amount of water into the atmosphere. Without transpiration plants cannot release large amount of water into the atmosphere. So here this is the right answer. Now shift to the question number 11 and your question number 11 is which is a standard unit of measurement. बेटे हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। विदाउट यूनिट वी कांट मेजर एनीथिंग। हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं विदाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो व्हिच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? इनमें से कौन है जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की? फर्स्ट इज एंगुल, फिंगर, सेकेंड वन इज, पहला है क्या आपका अंगुल, फिंगर, सेकेंड वन इज मुट्ठी, फिस्ट, step or inch. So out of these which is the standard unit of the measurement? इनमें से आपको जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन है जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। या तो आपकी अंगुल है दैट इज फिंगर, मुट्ठी, फिस्ट या फिर स्टेप एंड द लास्ट वन इज इंच। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measurement is inch. Inch is the right answer. तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बेटे दैट इज नॉट अंगुल, नॉट मुट्ठी, इवन नॉट स्टेप, बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंच. सो हियर इंच इज द राइट आंसर. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर क्वेश्चन नंबर 12 इज What is the SI unit of length? अब यूनिट जो है SI यूनिट जो है लेंथ के वो क्या है? लेंथ की SI यूनिट, वन इज मीटर, सेकेंड वन इज सेंटीमीटर, थर्ड वन इज किलोमीटर एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ की SI यूनिट बताने हैं, या तो मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं या फिर किलोमीटर्स हैं एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. तो जो हमारी SI यूनिट है बेटे, SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के जो SI यूनिट होंगे बेटे दैट इज मीटर. मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट सेंटीमीटर, नॉट किलोमीटर एंड नॉट ऑल ऑफ दीज. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. तो जो बेटे हमारे SI यूनिट है लेंथ के दैट इज मीटर. सेंटीमीटर, किलोमीटर ये हमारे SI यूनिट नहीं है लेंथ के. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर क्वेश्चन नंबर 13 इज 4 किलोमीटर्स आर इक्वल टू, 4 किलोमीटर्स आर इक्वल टू. अब हमारे 4 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल है? किलोमीटर. किलोमीटर मींस उसको हम पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है? तो अब हम 4 किलोमीटर जो है वो हमारे किसके इक्वल है? अब उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मीन्स इक्वल टू 4000 मीटर. सो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13. तो जो हमारे किलोमीटर्स है उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 100 मीटर के इक्वल है. तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर के साथ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4000 मीटर. नॉट 4 लाख मीटर, नॉट 40,000 मीटर एंड इवन नॉट 400 मीटर. अब हमने कहा इसमें पूछा गया कि 4 किलोमीटर जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? तो 4 किलोमीटर they are not equal to 4 lakh meter, not equal to 40,000 meter and even not 400 meters, but 4 kilometers are equal to 4000 meters. क्योंकि किलोमीटर्स जो मैंने बोला कि 4 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर जो वो किसके इक्वल होता है? 100 मीटर के. फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर के साथ, तो hence the answer comes out to be 4000 meter. That means 4 kilometers are equal to 4000 meters. So this is the right answer.
Now shift to the question number 14, and your question number 14 is 15 centimeter are equal to 15 centimeter are equal to, सेंटीमीटर को अब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है? 10 मीटर के इक्वल होता है। तो 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 150। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई बाय करते हैं 10 के साथ, 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, सॉरी 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 1, 150 मीटर। तो इस तरह से बेटे इसका ये आंसर आएगा कि 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू, सेंटीमीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर के, ठीक है। तो हेल्स दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 150 मिलीमीटर, नॉट 15 मीटर, नॉट 1.5 मिलीमीटर, नॉट 0.5 मिलीमीटर। 4 ऑप्शंस दी गई थी कि 15 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 150 मिलीमीटर के, 15 मिलीमीटर के, 1.5 मिलीमीटर के, या फिर 0.15 मिलीमीटर के। तो इसमें जो हमारा आंसर है 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 150 मिलीमीटर। नाउ शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड your last question is question number 15, and your question number 15 is which of the following is a correct relationship। आपके पास 4 रिलेशंस दी गए, उन रिलेशनशिप्स में से आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है वो सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है बेटे? 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटे? 1000 मीटर होते हैं, ये भी सही रिलेशनशिप है। तो हमारे पास 3 रिलेशनशिप दिए गए हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही रिलेशनशिप है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इट इज अगेन अ करेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, it is again a correct relationship. So here all these relationships are the correct relationships, and here the answer, that is all of these, is the correct answer for the question number 15. So here beta we complete 15 important expected MCQ questions or objective questions regarding the science subject for class 6 for the session that is 2022, and this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board, and this is the syllabus for the term 2 examination. So once again, good night to all the students.